A very good day to all of you, my dears. Hello, ninth class. Now it is a very fine day for you. You would have been getting humid. Sometimes you get sun, sometimes you enjoy rain, and now also in this corona period, you would have been settled and lying comfortably at your house, and time to time you would have been just watching your mobiles to get such trainings, such educated patterns. Now you have been scrolling the pages one after another, and it depends on you. As you are liberal here. You are feeling quite liberty and freedom. If your parents are not forcing you to study, then you would not be daring. But I think that actually this is not the good habit. If you are not just going through each and every subject, you are just getting behind yourself. You are not up to the way. You are not up to the progress. You have to make your journey. You have to read daily. You should take care of your subjects properly each and every day. The little part will improved by and by, and then the whole component can be set, that it will be in a perfect form. Therefore, now as you have completed your literature portion, only one chapter from your beehive and the poem road not taken, as you have completed. So in this way, I told you in my previous video that I would like to teach you article. Article is one of the most important thing for you. And here the question comes, what is article? Actually, article belongs to things and goods, but here in English language, article, that is demonstrative points, you can say. Demonstratives, it points out, demonstrative always points out person, place or thing. Person, place or things. Demonstratives. Now, demonstrative points out person, place or thing. So, in the same way, demonstrative adjective. So, demonstrative adjective. Now, have you read the word adjective? That describes the quality of noun or pronoun. Adjective. That describes the quality of noun or pronoun. This is known as adjective. Okay, my dears. So, now take care of it. Thank you very much. Demonstrative adjective. Demonstrative adjectives answer. आंसर, किस चीज़ का आंसर देता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस चीज़ का आंसर देता है? तो क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन. कैसा क्वेश्चन भाई? हैं? विच, आंसर द क्वेश्चन. ये विशेष बात. Demonstrative adjective answer. Demonstrative adjectives answer the question which. They point out.
क्या पॉइंट आउट करता है भैया? है पॉइंट आउट विच पर्सन आर थिंग डू दे बिलोंग और डू दे मीन. विच पर्सन आर थिंग, पॉइंट आउट विच पर्सन अरे विच पर्सन आर थिंग दे मीन. तो ये हमें इस तरह की चीज़ें देता है. जस्ट ए मिनट डियर्स. And my dears, this demonstrative adjective, the demonstrative adjective clear? What is adjective? The demonstrative adjective is known as article. Demonstrative adjective is known as article. ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? बहुत सही. ठीक. Now here we should see about a, an and the. तो a, an and the, these are known as article. yes please, have you noted it? नोट कर लीजिए. डिमॉन्स्ट्रेटिव्स क्या है? इट पॉइंट्स आउट पर्सन प्लेस आर थिंग्स. पर्सन प्लेस और थिंग्स के बारे में ये पॉइंट्स आउट करता है, यानी बताता है. अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या करता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आंसर द क्वेश्चन विच. किसका आंसर देता है? विच का. दे पॉइंट आउट, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, दे पॉइंट आउट विच पर्सन आर थिंग दे मीन, मतलब उनके कहने के बारे में क्या मतलब है. ठीक है. तो अब इससे आते हैं. अब हम ये देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, that is indefinite article and definite article. Article is divided into two parts. तो indefinite article a and an, these are indefinite article, and the is definite article. अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये डेफिनिट क्यों कहलाता है और ये इनडेफिनिट क्यों कहलाता है. Why it is called indefinite article, why it is called a definite article? तो इसकी कुछ विशेषता तो होगी, उसको देखते हैं. जल्दी करिए आप लोग भी. जस्ट ए मिनट माय डियर्स. डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल, लोग कह देते हैं कि हाँ ये डेफिनिट है, ये इनडेफिनिट है, लेकिन ऐसा क्यों है इसके लिए थोड़ा सा हमको भी ध्यान देना पड़ेगा. द इज कॉल्ड
आर्टिकल बिकॉज इट, कुछ कोई बताएगा, कोई जानता है कि क्या होगा? बिकॉज इट refers to क्या? a particular person or thing, a particular person or thing. The is called definite article because it refers to a particular person or thing. particular person मतलब विशेष प्रकार के व्यक्तियों के बारे में बताता है। पर्टिकुलर है, स्पेशल है, वो उसके बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करता है? वो व्यक्ति के बारे में कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन करता है। अगर हम एक बात करें तो ये कह सकते हैं कि कोई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आई मेट द टीचर, तो हमने यहाँ लिखा है द टीचर, तो टीचर क्या है? ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया। ये आई मेट द टीचर, तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें इसके बारे में, इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करें, ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite article because क्या? बिकॉज हैं? दे डू नॉट रिफर, दे डू नॉट refer to a particular person or thing. They do not refer to a particular person or any particular person or thing. They do not refer any particular person or thing. तो फॉर एग्जाम्पल है, कह दीजिए आई सा अ गर्ल। अब देखिए यहाँ द टीचर जो है वो पर्टिकुलर हो गया है, क्योंकि उस टीचर के बारे में लोग जानते हैं कि कौन सी टीचर से वो मिला है। ठीक है, द टीचर वो स्पेशल है। आई मेट द टीचर, जैसे मान लो दो चार बच्चे हों, एक ही टीचर उनको पढ़ाता है, आई मेट द टीचर, तो वो बच्चे सारे बच्चे जान जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो नोन पर्सन है उनके लिए। और अगर यहाँ कहा जाता है आई सा ए गर्ल, तो ये कोई इसका स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नहीं है। इट इज़ नॉट स्पेशली आइडेंटिफाइड। आई सा ए गर्ल मतलब एक गर्ल, कोई कौन सी है वो, मतलब ये नहीं मालूम, लेकिन हमने एक गर्ल को देखा, आई सा अ गर्ल, मैंने एक गर्ल को देखा। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। नोट कर लीजिए तुरंत। हो गया? नाउ देखिए, अब हम आगे चलते हैं और सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। मेरा मेन पॉइंट क्या होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल।
अब इंडेफिनिट आर्टिकल में वी हैव बीन गेटिंग 2 points, that is a, and we are getting and. If you see the meaning of these 2 words that denotes the singular thing, one, a or an denotes one unit of anything, one unit of anything, one man, one child, oneness of things, singular, that especially denotes the singular. Now here, that where a is used and where an is used, क्या यार इसको, just a minute my dears, please, I have to fill up the ink. Just carry on. Now a is used before consonant. Before a is used before consonants. कॉन्सोनेंट के बारे में क्या आप जानते हैं? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट क्या है? वाउल एंड कॉन्सोनेंट. वाउल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू. These are known as vowels, and rest of it, other letters are known as consonants. These consonants, consonant sounds. Now a is used before consonant, before vowels, that is before vowels. Before vowels. Now with, which vowels with a consonant sounds. क्या करते हैं? देखिए, ध्यान दीजिएगा कि a is used before consonants. ठीक, कॉन्सोनेंट के पहले हम a का यूज करते हैं, और a का यूज और कहाँ करते हैं? वाउल के वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होते हैं, कॉन्सोनेंट की तरह प्रोनाउंस होते हैं, उनके साथ हम ये करते हैं. एंड बिफोर, और बिफोर क्या करते हैं? एब्रिविएशन. abbreviations having consonant sound. Abbreviations having consonant sound. अगर वो consonant sound से है तो हम ये करते हैं. Just you are supposed to write it. इसको पहले आप नोट कर लीजिए. अभी हम इसको मिटा करके थोड़ा सा लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल. अभी हम इसको एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, उसके बाद तो आप एज, a man, a bird, a fruit. ये इसे मतलब नाम हो गया. अ यूनिट, देखिएगा यू, ए आई ओ यू है, वो है, लेकिन ये क्या है? ए आई ओ यू.
यू जो है उसका प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन वावल साउंड नहीं आ रहा है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। और यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यू से हो रहा है, लेकिन अब देखिए अ यूजफुल एनिमल कर दीजिए, ठीक है, अ यूजफुल एनिमल कर दिया मैंने ना। यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन, EUROPEAN, देखिए ई है, यू है, यू है, यू है, लेकिन कहीं भी एंड का यूज नहीं हो रहा है। क्यों? अ हिल, अ हार्स, जैसे ये भी एच जो है वो कभी कभी सेम ही वॉवेल का काम करता है, इसलिए इसका भी हम लोग किया ना। ही इज अ BA, BA, अब BBA कर सकते हैं, अब तो लिख दिए, बी लिख दिए, BBA, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बियर्ड, BEED, अ बियर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ ये कर दिए, लेकिन अब इसके अलावा अब हम दूसरा बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए प्लीज़, तुरंत नोट कर लीजिए इसे, मस्ट नोट इट सून प्लीज़। Now, an is used. देखिए अभी हमको बहुत ज़्यादा इसमें बताना है, ये नहीं कि दैट इज़ सफिशिएंट, ऐसा मत सोच लीजिएगा, अभी तो ये बिगनिंग अब चल रहा है, यू आर जस्ट गोइंग टू अ बिगनिंग। ठीक है, एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? अभी जैसे आपने सुना कि कॉन्सोनेंट साउंड ए इज यूज्ड बिफोर द वर्ड दैट हैज़ कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो एन इज यूज्ड बिफोर वावल and is used before vowel, तो before vowel and before letters and before letters that provides or that gives or that letters with a vowel sound। देखिए AEIOU से भी हम करते हैं, ठीक है, AEIOU से भी करते हैं, और उससे भी करते हैं जो ऐसे वर्ड जो कहीं अकेले हैं या एब्रिविएशन है, वो वाउल साउंड देता है। वाउल साउंड AEIOU, इसमें से अगर कोई साउंड देता है, से यू को यू पढ़ा जाता है, ओ को ओ पढ़ा जाता है, ठीक है, आई को आई, लेकिन ये क्या प्रोनाउंस करता है? हमेशा ओ, आ, ई, इस तरह के प्रोनाउंसिएशन जो होते हैं वो वाउल साउंड से होते हैं। तो ठीक है, ऐसे एन आइलैंड, ये इजलैंड नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा,
एन आइलैंड, ये आइलैंड है, इजलैंड नहीं है। एन ईगल, हैं, एन ईगल, एन ईगल, ठीक है। एन आउल, एन आउल, एन आइलैंड, एन एग, एन एग। तो इस तरह से इससे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब आप देखिएगा, ऐसे वर्ड्स मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसे वर्ड्स दो वॉवेल साउंड से रखते हैं, ऐसे उसके प्रोनाउंसिएशन में वॉवेल साउंड आता है। एन अंकल, एन अंकल, यहाँ यू जो है ए की तरह प्रोनाउंस किया गया, अंकल, ए अंकल, ठीक है। अंकल, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, ठीक है। अम्ब्रेला, एन अंकल, एन अम्ब्रेला। अब देखिएगा, अभी आपने उसमें लिखा है अ यूनिवर्सिटी, ठीक है, अ यूनिवर्सिटी। तो व्हेन यू इज प्रोनाउंस्ड एज यू, that is the consonant sound, and when u is pronounced as a, okay, e, like this, then an is used. Now here, for the short forms or abbreviations, as you can say an, ma, as you have written ba, as you have written BA, so in the same way, MA, MA, that is M, A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Just idiot. This is the camera setting making me fuss. Now E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. If we pronounce these letters separately, then these separate letters have been providing us vowel sound. If you pronounce it F, this is the vowel sounds. H, vowel sounds. L, vowel sounds. M, N, S, X, these are vowel sounds. So, if the abbreviation or short form begins with any of the letter, at that place and is used, as an MLA, he is an MLA, he is an MLA. Therefore, you can find out the proper channel of all these, that how to distinguish sounds, and it is one of the most important factor for you. And I have been just giving you such points to must practice about the phonetic sound of the words. Until or unless you are not just practicing it, it should be
learnt by heart and mind. It should not be generally practiced that it is given in the book and according to the series just you have written yes. Now, this produce vowel sound when spoken alone or single. The single letter, these single letters, if spoken separately, now it provides a different sound, that is the vowel sounds. Now, indefinite article is used, that you have to find out the some rules that where indefinite articles are to be used. Now, before singular noun which is countable, indefinite article is used before singular noun which is countable, singulars always be countable, or sometimes of which there is more than one, sometimes there is more than one, singular, more than one. Now, as I need a picture, a picture. Now, what is this? Before a singular noun, before indefinite article is used अब ये मान लीजिए आपका हेडिंग है, ये आपका पॉइंट है। अब आप एक तरह से रूल नंबर 1 लिख रहे हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं रूल नंबर 1। तो इनडेफिनिट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर नाउन, बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल, बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल। ये आप कह लीजिए कि रूल 1 हम लिखवा दिए, बिफोर अ सिंगुलर नाउन विच इज काउंटेबल। तो आई नीड ए पिक्चर, अब इसी में आपने ये बना लिया कि आई नीड ए पिक्चर। हाँ, अब दूसरा अगर हम करते हैं तो इसको मिटाना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रूल लिखते हैं, वेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड, हाँ क्या, वेन ए सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अब जैसे एक सिंगुलर नाउन फॉर द फर्स्ट टाइम किया, है, एंड रिप्रेजेंट्स REPRESENTS एंड रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स है, रिप्रेजेंट्स नो पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। भाई ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात यह है कि जो चीज़ हम ए के साथ पढ़ेंगे या एन के साथ पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहा है, तो अगर यही पर्टिकुलर पर्सन हमको परिचित है तो द का यूज कर दिया जाएगा, और यही पर्टिकुलर पर्सन अगर परिचित नहीं, जैसे मतलब पहली बार बता रहा है, पहली बार बात हो रही है, तो ऐसे कंडीशंस में हम ए का ही यूज करेंगे। जैसे भाई अब कर दीजिए
आई नीड ए कार। मतलब एक कार, अब कोई पर्टिकुलर कार नहीं है, मुझे एक कार की आवश्यकता। आई नीड ए कार। आई सा ए चाइल्ड इन द पार्क। ठीक है, आई सा ए चाइल्ड इन द पार्क। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आपको रोकते हैं कि अब ये 2 रूल्स आपने आज लिखा। इन माई नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द फर्दर क्लास कंप्लीट यूज एंड ओमिशन। मैं बताऊंगा कि अभी और ए और एन का यूज कहाँ हो सकता है, और फिर इसके अलावा ए और एन का ओमिशन यानी कि कहाँ नहीं होता है। इन माई नेक्स्ट वीडियो यू विल लेट अस सी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।